Hello, welcome back once again in basic electronics subject. So in our last lecture, we have completed the topic of common emitter configuration, and in that lecture, we have seen the common emitter configuration circuit diagram with its input characteristics as well as output characteristics. So this was the output characteristic which we have seen in our last lecture for common emitter configuration, and previously we have seen the input characteristic as well for common emitter configuration. So till now we have completed in this particular chapter the types of configuration, common base configuration and common emitter configuration in detail. Now moving ahead, there is one relation important regarding to this particular configuration. Also I have told you something about beta, that is current gain amplification for common emitter configuration. So if you remember, I have explained you this thing also, current gain for common emitter configuration. So current gain for common emitter configuration is denoted by symbol beta, and it is the ratio of output current upon input current. So in common emitter configuration, the output current is collector current and input current is base current. So the ratio of both this current, you will get the current gain, that is beta, and this current gain beta is for common emitter configuration. Similarly, if you see for common base configuration also, so common base configuration current gain is denoted by symbol alpha, and the common base configuration current gain is the ratio of output current, that is collector current, and input current, that is emitter current. Because in common base configuration the output current is collector current but the input current is emitter current, because the base terminal is common between the input and output. So here in current gain in the common base configuration is denoted by symbol alpha, and it is the ratio of IC upon IE. So current gain alpha is IC upon IE and current gain beta is IC upon IB. So remember these two things, it is very important. Now we have to derive the relation between these two alpha and beta, because a very important and famous question asked in every board examination: define alpha and beta and derive the relation between alpha and beta. So first of all, you must know what is alpha and what is beta. So the alpha is the current gain related to common base configuration. So current gain related to common base configuration is denoted by symbol alpha, and it is the ratio of output current upon input current of the common base configuration. So the output current in common base configuration is collector current IC, and input current in common base configuration is IE. So the ratio IC upon IE is known as alpha. Similarly, we have seen the current gain for common emitter configuration as well. So current gain for common emitter configuration is the ratio of output current upon input current. So the output current in common emitter configuration is same only, that is collector current only. But the thing is that the input current in common emitter configuration is IB, because emitter terminal is common to input base and collector current output. So that's why the ratio output current upon input current is the current gain in common emitter configuration, which is denoted by beta, and it is IC upon IB. ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? तो अभी हम लोग को बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करना है। वो क्या करना है कि अल्फा एंड बीटा, पहले तो ये अंडरस्टैंड करना था अल्फा एंड बीटा क्या है, उसको डिफाइन करना था, और फिर उसके बाद डेरिवेशन करना है, उनके बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा, वी हैव टू डिराइव दैट। तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो डिराइव करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ने अल्फा देखे क्या होता है। तो अल्फा जो है वो क्या है, करंट गेन है किसका, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन का। तो अल्फा जो है वो कॉमन बेस कन्फिग्रेशन का करंट गेन है, और गेन हमेशा क्या होता है आपको पता ही होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट को गेन बोलते हैं। तो जब करंट गेन की बात कर रहे हैं तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट देखा जाएगा। तो कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में आउटपुट करंट होता है IC और इनपुट करंट होता है IE, तो उसका रेशियो हो गया अल्फा। इसी तरीके से अगर कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन में जो करंट गेन होगा उसका आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट होगा। तो कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन में आउटपुट करंट होता है कलेक्टर करंट और इनपुट करंट होता है बेस करंट। तो ये हो गया रेशियो आपका बीटा। ना अब हम लोग डेरिवेशन को जाते हैं, डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। जो डेरिवेशन हम लोग को देखना है अल्फा एंड बीटा की तरफ, जो डेरिवेशन हम लोग को डिराइव करना है
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा किस तरीके से आपस में रिलेट करते हैं उसका डेरिवेशन डिराइव करने के लिए पूछता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेरिवेशन के तरफ जाने से पहले मैं आपको आपके एक इक्वेशन की तरफ लेके आना चाहूँगा, जो इक्वेशन आपको पता है। व्हाट इज़ द इक्वेशन? इट इज़ रिटर्न। ये चीज़, ये एक्सप्रेशन आपने पहले भी देख चुके हैं जब हम लोग ने वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर देखे थे। द टोटल emitter current IE is divided into two currents IB and IC। तो जितना इमीटर से करंट इमिट होता है IE, वो डिवाइड होता है दो करंट में, एक होता है बेस करंट और एक होता है कलेक्टर करंट। ये चीज़ आप लोग ने सबने पहले ही वर्किंग में अंडरस्टैंड कर चुके थे हम लोग ने। तो टोटल करंट IE इन द ट्रांजिस्टर इज इक्वल्स टू सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। ये सब लोग को एक्सप्रेशन पता है, तो वी नो डैट ये एक्सप्रेशन सबसे पहले हम लोग ने लेके आए, IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। अब हम लोग ने क्या किया, ये एक्सप्रेशन को डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय IC कर दिए। अब ये जो एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन को हम लोग ने क्या किए, डिवाइड किए बोथ द साइड्स, दोनों भी साइड बाय किससे, कलेक्टर करंट IC से। तो इफ़ यू डिवाइड बोथ द साइड बाय IC, तो ये IE के नीचे IC आ जाएगा, और राइट साइड में IB प्लस IC के नीचे क्या आ जाएगा, IC आ जाएगा। ठीक है। अब ये IC जो है वो कॉमन है दोनों भी न्यूमरेटर की टर्म को, तो आप इसको सेपरेट कर दो, सेपरेट करो, स्प्लिट करो। ये जो कॉमन टर्म है IC, इट विल बी सेपरेटेड अपॉन बोथ द टर्म्स ऑफ द न्यूमरेटर। तो IB अपॉन IC प्लस IC अपॉन IC। ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लेके आए, I इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। फिर ये एक्सप्रेशन को क्या किया, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय किससे किए, IC से किए। तो लेफ्ट साइड में आपका क्या हो गया, I अपॉन IC हो गया, और राइट साइड में जो IB प्लस IC था उसके नीचे IC आया, कॉमन था दोनों भी टर्म को, तो दोनों भी टर्म के हिसाब से सेपरेट कर दिए। तो ये हो गया IB अपॉन IC प्लस IC अपॉन IC। तो दिस IC अपॉन IC सेम कट हो जाएगा, दोनों भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम था, डिवाइड हो जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, इधर पे 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों भी सेम डिवाइड हो गया, सेम थिंग था, तो यू विल गेट व्हाट, 1 इन दिस टर्म। तो IC कट होके ये 1 हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, IE अपॉन IC लेफ्ट साइड में बचा है, IB अपॉन IC राइट साइड में प्लस 1, IB अपॉन IC प्लस राइट साइड में क्या बचा, 1। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो IE अपॉन IC है और ये जो IB अपॉन IC है, ये दोनों भी आपको पता है ये दोनों किसी चीज़ का रेसिप्रोकल है। जस्ट नाउ अभी हम लोग ने यहाँ पे ये देखे अल्फा जो करंट गेन कॉमन बेस कन्फिग्रेशन का, उसका एक्सप्रेशन क्या देखे, IC अपॉन IE। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे अल्फा का, 1 अपॉन अल्फा कर दोगे, तो ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, न्यूमरेटर की टर्म जो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I अपॉन IC। तो जो लेफ्ट साइड में आपके पास जो टर्म आ रहा है I अपॉन IC, तो ये I अपॉन IC क्या है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा। तो ये अल्फा का रेसिप्रोकल है, तो हम लोग ने इसके लिए यहाँ पे क्या लिखे, 1 अपॉन अल्फा लिखे I अपॉन IC की जगह पे। सिमिलरली राइट साइड की जो फर्स्ट टर्म है IB अपॉन IC, ये भी आपको किसका रेसिप्रोकल दिख रहा है, बीटा का रेसिप्रोकल दिख रहा है, बिकॉज बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, IC अपॉन IB। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, 1 अपॉन बीटा करोगे, तो जो ये डिनोमिनेटर की चीज़ है वो न्यूमरेटर में जाएगी और न्यूमरेटर की चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो ये IB अपॉन IC हो जाएगा। तो 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, IB अपॉन IC। तो हमारे पास एक्सप्रेशन में जो टर्म आई थी, उस एक्सप्रेशन की टर्म को देखते हुए हम लोग ने अल्फा और बीटा से उसको रिप्लेस किया। सो I अपॉन IC, ये आपका जो I अपॉन IC है, ये जो टर्म है I अपॉन IC, इसको आपने रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन अल्फा से, और ये जो आपका जो टर्म है IB अपॉन IC, इसको आपने रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन बीटा से, क्योंकि आपको दोनों का डेफिनेशन से पता था, एक्सप्रेशन पता था, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। ओके, बस अब आपका इतना काम हो गया, तो अब आपका पूरा आंसर हो गया। अब आप क्या करो, राइट साइड में ये बीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, बीटा होगा। सो 1 प्लस बीटा इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 बीटा। हम लोग ने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये राइट साइड का हम लोग ने खाली क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। सो 1 अपॉन बीटा प्लस 1 था, हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई किए, बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 बीटा, बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा आपका राइट साइड में आ गया। ओके, सो राइट साइड में आपका क्या आया है, 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा आया है, ये आपका एक्सप्रेशन आया 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और लेफ्ट साइड में आपका 1 अपॉन अल्फा है। तो आप जब ये चीज़ को भी आप रेसिप्रोकल कर दोगे, अब ये 1 अपॉन अल्फा का ये एक्सप्रेशन है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वही चीज़ जो ये डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो बाय इन्वर्ट एंडो, इसको इन्वर्ट एंडो बोलते हैं, जो इन्वर्ट किया आपने, रेसिप्रोकल के इन्वर्ट किए। तो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा था,
तो बाय इन्वर्टेंडो कर देंगे, तो इन्वर्टेंडो करके ये अल्फा इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, जो ये डिनोमिनेटर का टर्म था वो न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर का टर्म था वो डिनोमिनेटर में, तो अल्फा इजिकल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, तो अल्फा इजिकल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, फाइनली आपको डेरिवेशन मिलेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो मैंने आपको डेरिवेशन कराया हूँ ये एक शॉर्टकट तरीके से कराया हूँ। आप बुक्स वगैरह में अगर नोट्स में देखने जाओगे तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस के तरीके से दिखाया हुआ है, वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे से दिखाया हुआ है, बट फॉर योर ईजीनेस, आप लोग की ईजीनेस के लिए, आसानी के लिए, जो आप आसान तरीके से इसको डिराइव कर लो रिलेशन को, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको सामने एक्सप्लेनेशन लेके आया। तो डेरिवेशन करने से पहले सबसे पहले तो आप लोग अल्फ़ा और बीटा को डिफाइन करना। व्हाट इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, तो ये करंट गेन है किसमें, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, उसका एक्सप्रेशन लिखना IC अपॉन I। फिर उसके बाद बीटा को डिफाइन करना, बीटा क्या है, ये करंट गेन है किसमें, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो बीटा में कॉमन इमीटर में आउटपुट करंट IC होता है और इनपुट करंट IB होता है। तो इसको बीटा से डिनोट करते हैं करंट गेन ऑफ सी एम्पलीफायर को, और इसको अल्फा से डिनोट करते हैं करंट गेन ऑफ CB कॉन्फ़िगरेशन को। अब हम लोग डेरिवेशन डिराइव करने के लिए आ गए एक नॉर्मल से एक्सप्रेशन के पास, I इजिकल्स टू IB प्लस IC, जो हम लोग ने वर्किंग में ही देख चुके थे, टोटल इमीटर करंट इजिकल्स टू सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। अब इसी एक्सप्रेशन को पहले सबसे पहले डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय IC किए, तो I अपॉन IC हो गया, इधर हो गया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में IB प्लस IC अपॉन IC हो गया। फिर ये जो IC राइट साइड का था उसको स्प्लिट किए, दोनों भी टर्म के नीचे किए क्योंकि वो कॉमन था, तो IB अपॉन IC प्लस IC अपॉन IC हो गया, ये IC कैंसिल, यू विल गेट 1। नाउ I अपॉन IC इज द रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा, तो इसके लिए 1 अपॉन अल्फा से लिखे, और IB अपॉन IC इज द रेसिप्रोकल ऑफ बीटा, इसलिए उसको 1 अपॉन बीटा से लिखे। बाकी फिर क्या करना, आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा, और इसका ही इन्वर्टेंडो कर दो, तो अल्फा इजिकल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। फाइनली ये डेरिवेशन, ये आपको डेरिवेशन मिला आपको। तो डेरिवेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा के बीच का रिलेशनशिप बताने वाला, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को कुछ डाउट है इसमें, डेरिवेशन में कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछ सकता है। ये डेरिवेशन आसान डेरिवेशन था, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशनशिप बताने वाला एक्सप्रेशन था। तो MCQ में भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज, तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो आई होप मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। कमिंग टू ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हमको कंपैरिजन करना है कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। एक चीज़ यहाँ पे फिर क्लियर करना चाहता हूँ, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का तो किए नहीं हम लोग ने, सर्किट डायग्राम और इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो जो चीज़ आपके सिलेबस में दी हुई थी वो सिलेबस के हिसाब से कवर किए। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का कुछ खास रोल नहीं है, इसके लिए उसको इसका डिटेल में इतना पढ़ा नहीं जाता है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का सिर्फ एक ही काम है, उसका सिर्फ वोल्टेज गेन 1 होता है, तो उसको इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर कॉमन कलेक्टर की बात करोगे तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट में आपका क्या रहेगा, बेस, और आउटपुट में क्या रहेगा, इमीटर। तो जो मेन आउटपुट देने वाली चीज़ है, जो कलेक्टर है, उसको ही कॉमन कर दिए, तो कुछ इतना खास आपको एम्पलीफिकेशन के जैसा काम नहीं रहेगा इसमें। इसका सिर्फ काम एक ही रहेगा, इसको सिर्फ एक इम्पीडेंस मैच कराने के लिए यूज़ करते हैं, जिसका वोल्टेज गेन 1 होता है। जो डिवाइस जिसका वोल्टेज गेन 1 होता है, इसका सिर्फ वोल्टेज गेन 1 होगा, यूनिटी होगा, तो इसका सिर्फ एक ही काम होता है, इसको कोई चीज़ को मैच कराने के लिए यूज़ करते हैं। इनपुट और आउटपुट को मैच कराने के लिए जो बीच का यूज़ होता है, तो वो चीज़ यूज़ होती है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं वोल्टेज फॉलोअर, यूनिटी गेन एम्पलीफायर, ये सब नाम से इसको बोला जाता है। यूनिटी गेन एम्पलीफायर जिसका गेन एक ही होता है, 1 होता है, यूनिटी गेन एम्पलीफायर और इमीटर फॉलोअर, ये सब नाम से इसको बोला जाता है, जाना जाता है। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की कुछ खास इतना रोल नहीं है, इन पर्सपेक्टिव ऑफ एम्पलीफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। जो कॉमन बेस और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एम्पलीफिकेशन की बात थी, जो उसका था, तो उसका डिटेल में हम लोग ने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। लेकिन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है एम्पलीफिकेशन पर्पज़ के हिसाब से। इसका सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, फॉर यूनिटी गेन एम्पलीफायर, जिसका गेन 1 होता है, इसका वोल्टेज गेन 1 होता है, और ये वोल्टेज गेन 1 होने के लिए हिसाब से ये यूज़ होता है
इम्पिडेंस मैचिंग पर्पस के लिए। तो इसके लिए इसका इतना डिटेल में हम लोग सर्किट डायग्राम और इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड नहीं किया। नाउ इसकी जो भी नॉलेज है, जो बाकी की जो स्टडी है वो आपको कंपैरिजन से क्लियर हो जाएगी। इसकी जो भी नॉलेज है वो आपको कंपैरिजन से बाकी क्लियर हो जाएगी। तो कंपैरिजन बिटवीन कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर कन्फिगरेशन। अब हम लोग को क्या करना है, तीनों भी कन्फिगरेशन के बीच में कंपैरिजन करना है। तो जैसा कि आपको एक कंपैरिजन दिख रहा है इन पैरामीटर पॉइंट, कुछ पैरामीटर पॉइंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करते हुए आ रहे, दिखा रहा होगा आपको। तो सबसे पहला पैरामीटर जो है कंपैरिजन का, कॉमन टर्मिनल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो तीनों भी पहले कॉन्फ़िगरेशन में कौन से टर्मिनल कॉमन रखी जाती है वो पैरामीटर सबसे पहला पैरामीटर है। तो कॉमन टर्मिनल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी टर्मिनल कॉमन होती है, बेस। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी टर्मिनल कॉमन होती है, इमीटर। और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी टर्मिनल कॉमन होती है, कलेक्टर। तो सबसे पहला बेसिक्स कंपैरिजन जो है वो कॉमन टर्मिनल कौन सी रखी जाती है इनपुट एंड आउटपुट में, तो बेस, इमीटर एंड कलेक्टर। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इनपुट रेजिस्टेंस बोलो या इनपुट इम्पिडेंस बोलो। व्हाट इज द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। तो इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है अपनी सर्किट का, ठीक है। तो इनपुट इम्पिडेंस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, सबसे कम होगा। वाई सबसे लेस इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि आपका इमीटर टर्मिनल इनपुट होता है और उसको फॉल्ट बाइजिंग देते हैं। तो फॉल्ट बाइजिंग देते हैं तो सबसे ज़्यादा करंट इमिट होता है वहाँ से। तो इनपुट इम्पिडेंस जो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में वो सबसे कम होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होता है, इमीटर करंट फ्लो होता है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेरी लो। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट इम्पिडेंस की बात होती है, तो इनपुट इम्पिडेंस इसका सबसे कम होता है, वेरी लो, जिसका वैल्यू भी दिया हुआ है नियरली टू द 20 ओम। 20 ओम तक की वैल्यू होती है खाली इसकी इनपुट इम्पिडेंस की। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं कॉमन इमीटर में। तो कॉमन इमीटर में इमीटर टर्मिनल अब इनपुट हो गया है, सॉरी कॉमन हो गया है। तो इनपुट में कौन सा टर्मिनल होता है, बेस। तो वहाँ पे जो फॉरवर्ड बाइजिंग करते हैं, तो फॉरवर्ड बाइजिंग करके मतलब इम्पिडेंस कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, लो होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू कॉमन बेस उससे ज़्यादा ही होता है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट इम्पिडेंस वेरी लो और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में लो खाली होता है, जिसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 किलो। उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 किलो। 1 किलो का फिर भी रेजिस्टेंस होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। और सबसे ज़्यादा जो इनपुट इम्पिडेंस होता है, इसलिए कोई करंट फ्लो ही नहीं होता है, कोई करंट जाता ही नहीं है ज़्यादा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में नियरली इनपुट इम्पिडेंस यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है, 500 किलो, विच इज़ वेरी वेरी लार्ज, वेरी ह्यूज। तो कहाँ से करंट फ्लो होगा जब इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आप ऑफर कर रहे हो इनपुट पे, हाउ द करंट विल फ्लो। तो ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट इम्पिडेंस सबसे ज़्यादा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस बोलो या रेजिस्टेंस बोलो। तो इनपुट रेजिस्टेंस इन कॉमन बेस इज वेरी लो, कॉमन इमीटर में लो और कॉमन कलेक्टर में हाई। ये वैल्यू के टर्म्स में आपको बताना है, सिर्फ ऐसा मत लिख देना वेरी लो, लो, हाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑल्सो, स्पेसिफाई द वैल्यू। तो कॉमन बेस में 20 ओम, कॉमन इमीटर में 1 किलो और कॉमन कलेक्टर में 500 किलो। और इसी तरीके से अब रिवर्स जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे आउटपुट रेजिस्टेंस की तरफ। तो आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि आप आउटपुट को क्या करते हो, रिवर्स बाइजिंग करते हो, बराबर। हम लोग ट्रांजिस्टर में क्या करते हैं, इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस, आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस करेंगे तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उधर पे। और यहाँ पे कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट की टर्मिनल कलेक्टर होती है, तो वहाँ पे आप इसको रिवर्स बाइजिंग करो, इसलिए यहाँ पे क्या शो किया हुआ है, वेरी वेरी हाई। So output resistance in common base configuration is very high. It is nearly to the 1 mega ohm. See the value 1 mega ohm. 1 मेगा ओम का आपको यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस मिलेगा, आउटपुट इम्पिडेंस मिलेगा। तो इसलिए वेरी हाई। और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, हाई, मतलब इससे कम ही रहेगा। हाई है लेकिन इससे कम है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एवरेज वैल्यू लेके चलता है, दोनों की एवरेज वैल्यू लेके चलता है, इधर पे लो और हाई, ना एक्सट्रीम ज़्यादा ना एक्सट्रीम कम। तो यहाँ पे है आपका हाई, इतने वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 40 किलो ओम की वैल्यू दिया हुआ है। तो आउटपुट इम्पीडेंस यहाँ पे हाई होगा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, एंड इट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 40 किलो। और सबसे कम जो आउटपुट इम्पीडेंस ऑफर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको, कौन सा दिया हुआ है, कॉमन कलेक्टर में। कॉमन कलेक्टर में आउटपुट इम्पीडेंस सबसे कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हाई करंट फ्लो होता है आउटपुट की तरफ, ठीक है। कौन सा, वो भी इमीटर करंट। तो सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होता है इमीटर करंट यहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ क्या होती है, इधर पे आउटपुट होती है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लो आउटपुट इम्पीडेंस इज लो एंड इट इज हैविंग नियरली टू द वैल्यू, कितना ओम दिया हुआ है, 50 ओम का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये
पैरामीटर के हिसाब से आपको वैल्यू याद रखना है। इनपुट इम्पीडेंस, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर में क्या होता है। फिर नेक्स्ट जो पैरामीटर आप कंपैरिजन करने के लिए लेके आओगे वो जाहिर सी बात है करंट गेन लेके आओगे, जो अभी हम लोग एक्सप्रेशन में देख रहे थे। तो करंट गेन अल्फा होता है किसमें, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है IC अपॉन आई, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट क्या होता है IC, और इनपुट करंट क्या होता है आई, और इसकी वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है लेस देन 1, यानी ये जो करंट गेन होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। सिमिलरली बीटा जो करंट गेन है वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का है, जिसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है IC अपॉन IB, क्योंकि आउटपुट करंट कलेक्टर करंट है और इनपुट करंट बेस करंट है। और ये करंट गेन वेरी हाई होता है, मतलब हाई होता है, नॉट वेरी हाई, हाई होता है IC अपॉन IB। फिर करंट गेन हाई होता है, एम्पलीफिकेशन वगैरह के लिए यूज होता है, तो दिस करंट गेन इज हाई। और सबसे लास्ट वाला जो है आपका इधर पे दिया हुआ है गामा। तो ये गामा किसका करंट गेन है, ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का है। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट क्या होगा IE, और इनपुट करंट क्या होगा IB। आउटपुट टर्मिनल इमीटर है और इनपुट टर्मिनल बेस है, इसलिए आउटपुट करंट IE होगा और इनपुट करंट IB होगा। और ये गामा वेरी हाई है, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ ये जो इमीटर करंट है वो बहुत ज़्यादा होगा इसमें, ये केस में। जब आपने कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन रखे हो और आउटपुट किसको बना दिया आपने, इमीटर को, तो सबसे ज़्यादा करंट तो उधर ही रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे कंस्टिट्यूट होंगे, तो सबसे ज़्यादा करंट वहाँ पे फ्लो होगा, इसलिए करंट गेन इज वेरी वेरी हाई इन केस ऑफ दिस कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। वोल्टेज गेन इक्वल टू 1 होता है, लेकिन करंट गेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हुई, समझ में आई। तो करंट गेन अल्फा लेस देन 1 से हमेशा कम ही रहेगा। बीटा हाई रहता है, मॉडरेट वैल्यू, वेरी गुड वैल्यू, जैसा आपको चाहिए एम्पलीफिकेशन के लिए वैसा रहता है बीटा। और gamma is very very high because of this emitter current is the output current in case of common collector configuration। so इसलिए इसका जो दिखा रहा है आपको करंट गेन वेरी हाई। बाकी वोल्टेज गेन की बात करेंगे तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में मीडियम है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में भी मीडियम है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 1 है। तो ये वोल्टेज गेन इक्वल टू 1 होने के हिसाब से इसको क्या बोला जाता है, यूनिटी गेन एम्पलीफायर। इसको यूनिटी गेन एम्पलीफायर भी बोलते हैं, जिसका गेन 1 होता है। वोल्टेज गेन जिसका गेन 1 होता है तो इसको यूनिटी गेन एम्पलीफायर के नाम से भी बोला जाता है इसको। और इसको इमीटर फॉलोअर के नाम से भी बोला जाता है, जो इमीटर को फॉलो करता है। तो इसका ये सब अलग अलग नाम है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का। तो इक्वल टू 1, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। बाकी दोनों में मीडियम है। तो एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज एज प्री एम्पलीफायर, जो एम्पलीफायर के पहले के लिए यूज होता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज यूज एज प्री एम्पलीफायर, यानी एम्पलीफायर के पहले वाली जो सर्किट होती है जिसको कनेक्ट करने के लिए यूज होता है वो आपका प्री एम्पलीफायर के जैसा यूज होता है कॉमन बेस। और कॉमन इमीटर आपका एक्चुअल एम्पलीफायर के जैसा यूज होता है। जो एम्पलीफिकेशन आपको चाहिए तो आप कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करोगे। और इसका कॉमन कलेक्टर का जो यूज होता है वो इम्पीडेंस मैचिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो आपको जब कभी कोई दो डिवाइस के बीच में इम्पीडेंस मैच कराना हो, आउटपुट इम्पीडेंस और इनपुट इम्पीडेंस को मैच कराना हो, तो बीच में जो आपका जो सर्किट यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, कॉमन कलेक्टर, जिसका काम क्या रहेगा, वो इम्पीडेंस को मैच करेगा। क्यों इम्पीडेंस को मैच करेगा, जब ऑलरेडी इसका गेन 1 है। तो जब गेन 1 है तो इसको एक्जैक्टली इनपुट और आउटपुट को पहुंचाना होगा, जो चीज़ इनपुट में वो आउटपुट में पहुंचे। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग पर्पज के यूज करते हैं। क्योंकि ये डिवाइस ऐसी है जिसका गेन ही क्या है, 1 है, वोल्टेज गेन क्या है, 1 है। तो जो इनपुट दोगे वही आउटपुट में पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग पर्पज के यूज करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग। तो इम्पीडेंस मैच होना चाहिए, आउटपुट इम्पीडेंस मस्ट बी मैच विद इनपुट इम्पीडेंस, देन ओनली योर मैक्सिमम थिंग विल बी ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। तो ये डिवाइस ऐसा है जिसका गेन 1 है, तो इसके लिए इसको पर्पसली इसको क्या यूज पर्पज पे यूज करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग पर्पज पे यूज करते हैं। जहाँ पे इम्पीडेंस मैच कराना होता है आपको, आउटपुट इम्पीडेंस मैच विद इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, तो वो चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था आपका कंपैरिजन बिटवीन कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका क्वेश्चन आपको आता है, कंपेयर बिटवीन कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स दिया हुआ रहता है, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन, एम्पलीफिकेशन, ऐसा वो पैरामीटर मेंशन करता है। तो जब पैरामीटर मेंशन करता है तो आपको ये सब वैल्यू के साथ में लिखना है। इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस कितना वैल्यू में होता है वो लिखना है। बाकी करंट गेन आपको तो पता है क्या मीडियम है क्या हाई है, वो चीज़ आपको स्पेसिफाई करना है। सो द लास्ट थिंग वी आर डूइंग application of transistor।
तो ट्रांजिस्टर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, उसके एप्लीकेशन जैसा कि आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे भी नीचे स्पेसिफाई किया हुआ था तो उससे ही मालूम पड़ जाता है आपको। तो ट्रांजिस्टर मेनली यूज फॉर द पर्पज ऑफ एम्पलीफिकेशन, एज अ एम्पलीफायर के लिए यूज़ होता है। सेकेंडली इट इज़ यूज फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है जिसका गेन 1 होता है, वोल्टेज गेन 1 होता है, तो वो किस पर्पज़ के लिए यूज होता है, फॉर मैचिंग द इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस टू बी मैच विद आउटपुट इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस मैचिंग। और एज अ स्विच, बहुत सर्किट में आपको ट्रांजिस्टर एज अ स्विच भी यूज होगा, और ये एज अ स्विच हम अलग से पढ़ेंगे भी, अगर आपको रहेगा स्पेसिफाई किया हुआ रहेगा सिलेबस में तो हम लोग पढ़ेंगे भी ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कैसा ऑपरेट होता है, अगर आप ट्रांजिस्टर को दो रीजन में ऑपरेट कर रहे हो, कौन कौन से रीजन में, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन में, तो ट्रांजिस्टर आपका एज अ स्विच के जैसा काम करता है। कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर आपका ऑफ स्विच के जैसा काम करेगा, सैचुरेशन रीजन में आपका ट्रांजिस्टर ऑन स्विच के जैसा काम करेगा। तो ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज अ स्विच ऑल्सो इन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रांजिस्टर को हम लोग एज अ स्विच भी यूज़ करते हैं, यानी जब आपको ऑन और ऑफ का काम कहीं दिखाना हो, कहीं पे आपको इनपुट आउटपुट में पहुंचाना हो, तो वहाँ पे ट्रांजिस्टर का एज अ स्विच जैसा रोल भी यूज होता है। और ये ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कैसे ऑपरेट कर सकते हो, जब आप इस चीज़ को आप कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करोगे। तो व्हेन यू यूज ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ रीजन, यानी जब आप इनपुट और आउटपुट दोनों को रिवर्स बाइजिंग दोगे, तो जब इनपुट एंड आउटपुट जंक्शन दोनों भी रिवर्स बाइस होगा तो ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच के जैसा काम करेगा। और जब वही ट्रांजिस्टर का इनपुट जंक्शन और आउटपुट जंक्शन दोनों को फॉरवर्ड बाइस कर दोगे, तो वो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में काम करेगा, यानी ऑन स्विच के जैसा काम करेगा, फुल्ली ऑन रहा। तो फुल्ली ऑन फुल्ली ऑफ, तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ऑन होता है। और भी बहुत जगह पे ट्रांजिस्टर यूज होता है, जैसे ऑसिलेटर सर्किट वगैरह में भी ट्रांजिस्टर का यूज होता है। तो ट्रांजिस्टर तो बहुत मेन है, बैकबोन है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, वो तो सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में नजर आएगा ही आएगा। मेनली जो ट्रांजिस्टर का आपका यूज है वो कहाँ पे यूज होता है, किस पर्पज के यूज होता है, एज अ एम्पलीफायर, एंड इम्पीडेंस मैचिंग, एज अ स्विच, एंड इन ऑसिलेटर सर्किट। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है यहाँ तक? एनीबडी इज हैविंग डाउट? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? किसी को कुछ पूछना है क्या? टेल मी। सुन रहे थे कि भी नहीं सुन रहे थे? Yes, sir. ओके, सुन रहे थे ना? ओके No doubt. ओके ओके, ठीक है। तो मैं फिर अभी अपने लेक्चर को आज इधर ही पे स्टॉप करूँगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइजिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो ये नेक्स्ट समझो एक सब टॉपिक पार्ट से स्टार्ट होगा ट्रांजिस्टर से रिलेटेड। तो यहाँ तक ट्रांजिस्टर का आप बोल सकते हो फर्स्ट पार्ट हम लोग ने कंप्लीट किए। इस ट्रांजिस्टर के फर्स्ट पार्ट में पहले ट्रांजिस्टर को जाने, उसके टाइप्स को जाने, उसके कंस्ट्रक्शन को देखे, उसके वर्किंग को देखे, फिर इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर था वो अंडरस्टैंड किए। फिर इसके बाद जो टॉपिक लिए हम लोग ने वो ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन लिए। ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन को लिए, उसका सर्किट डायग्राम, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद आज हम लोग ने वो तीनों कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर किए, और कंपेयर करके आज यहाँ पे हमने नॉर्मल ट्रांजिस्टर का जो अंडरस्टैंडिंग था वहाँ पे ख़त्म किया विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। In the next related topic of transistor, we are going to all the things related with biasing। जिस तरीके से आपने पीएन जंक्शन डायोड की बाइजिंग देखे हो, फॉरवर्ड बाइजिंग, रिवर्स बाइजिंग, उसमें कैसा बिहेव होता है, अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर की भी अलग अलग बाइजिंग टेक्निक्स है। जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने देखे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर की भी अलग अलग बाइजिंग टेक्निक्स है। तो उन बाइजिंग टेक्निक्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सप्रेशन, और क्या फ़ायदा होता है वो बाइजिंग करके, वो सारी चीज़ को जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट थिंग इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड विद ट्रांजिस्टर, जो अलग तरीके की स्टडी होगी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, वो हम लोग कवर करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आप लोग को आज का यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया हुआ होगा। फिर भी आप लोग को अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है, कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ डाउट होता है, तो आप लोग ज़रूर मैसेज करो, कमेंट करो, पूछो मुझसे। डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू वंस अगेन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। मैं अपने आज के लेक्चर को इधर ही पे ख़त्म करता हूँ, एंड करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू वेरी मच।